वेलकम बैक। ये आगे आइए, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। लैंड रिसोर्स। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost importance. क्यों इज a natural resource of utmost importance? Because it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, and transport and communication systems. India has land under variety of relief features, namely mountains. जो हमारे पास लैंड है वो माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, आइलैंड्स एज शोन इन द बिलो। यहाँ पे देखिए प्लेन्स कहता है 43% है, माउंटेन्स कहता है यहाँ पे 30% है, और प्लेटोज जो है वो 27% है। ये इंडिया लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स। अब लैंड यूटिलाइजेशन पे आइए। द लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेज। पहला, एज अ फॉरेस्ट्री। सेकेंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। थर्ड, barren and waste land. Fourth, land put to non-agricultural use. चौथा, other cultivated lands. And sixth, net sown area. ये हो गया आपका यहाँ पे अब लैंड। अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, हमारे देश में कैसे लैंड यूज होता है? इट डिपेंड्स, इज डिटरमाइंड बाय यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग टू फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में सच एज टोपोग्राफी, जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। तो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला फैक्टर फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स geographical factors, right? Geological factors, climate, soil types. B, human factors such as population density, technological capability, and cultural and traditions, etc. ये हो गया human. The data below represents the land use pattern in India. यहाँ पे डेटा दिया गया है वो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। अब वेस्ट लैंड किसे कहते हैं? वेस्ट लैंड इज द लैंड पुट टू other non-agricultural uses. Waste land is the land put to other non-agricultural uses, which include rocky, arid and desert areas, roadways, railways, etc. Waste land is the land put to other non-agricultural uses, which include rocky, arid and desert areas, roads, railways, etc. Industry. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve it and manage it has resulted in land degradation. So, wasteland किसे कहते हैं? Is the land. Wasteland is the land put to other non-agricultural use. Land which is put to other non-agricultural use, which include rocky, arid, and desert areas, roads, railways, industry, etc. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. Right? अब आइए आगे। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में यहाँ बात किया गया है कि कैसे हम लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स को हम लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू लैंड डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, mining and quarrying have contributed significantly to land degradation. Mining sites leave deep scars and traces of overburdening of the land. The mining जहाँ पे होता है वहाँ पे हम इतना deep mining करते हैं कि वो land को overburden कर। In recent years, industrial effluents such as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. So यहाँ पे कह रहा है कि human activities such as deforestation, overgrazing, mining, quarrying have contributed significantly to land degradation. Mining sites leave deep scars and traces of overburdening the land. In recent years, industrial effluents also and waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. अब यहाँ पे नीचे उसके बाद देखिए, some of the ways through which we can solve the problems of land degradation are afforestation and proper management of grazing. Second, planting of shelter belts of plants. Third, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes. Proper management of wastelands. Control of mining activities. Proper discharge and disposal of industrial effluents and wastes after treatment. So, land degradation and conservation measures.
Human activities such as deforestation, overgrazing, mining, and quarrying have contributed significantly to land degradation. Mining sites leave deep scars and traces of overburdening the land. In recent years, industrial effluents such as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. So, land degradation and conservation measures. Land degradation and conservation measures. Human activities such as deforestation, overgrazing, mining, and quarrying have contributed significantly to land degradation. Mining sites leave deep scars and traces of overburdening the land. In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स में यहाँ पे कहा गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू लैंड डिग्रेडेशन. जो लैंड डिग्रेडेशन है वो डिफॉरेस्टेशन से, ओवरग्रेजिंग से, माइनिंग से एंड क्वायरिंग से लैंड डिग्रेडेशन बना. माइनिंग साइट्स में भी जो स्ट्रेसेस मिले हैं उससे भी लैंड डिग्रेडेशन हुआ है. हमारे इन रिसेंट ईयर्स industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution. जो industrial effluents निकला है फैक्ट्रीज से, उससे मेजर लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन हुआ है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब ये जो लैंड डिग्रेडेशन है उस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. पहला पॉइंट यहाँ पे है कि अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग. अफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट बनाइए, क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट, पेड़ लगाइए, क्रिएशन ऑफ जंगल बनाइए, ग्रीनरी करिए. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करिए लेकिन विद प्रॉपर मैनेजमेंट. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स लगाइए और शेल्टर की तरह, बेल्ट वाइज लगाइए. स्टेबलाइजिंग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस. थॉर्नी मतलब कि कांटेदार बुशेस लगाइए, बुश मतलब झाड़ झंकार बुश. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करिए. कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज पे कंट्रोल करिए. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफिडेंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट करके, केमिकल को ट्रीटमेंट करके प्रॉपर डिस्चार्ज करिए और डिस्पोजल करिए ऑफ इंडस्ट्रियल एफिडेंट. तो ये 6 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है. ये 6 पॉइंट को अगर हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग है. सेकेंड पॉइंट प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं. थर्ड, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स है बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस. चौथा पॉइंट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स. पांचवा पॉइंट, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़. छठा पॉइंट, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट. तो ये आपका जो है लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर देता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको. नेक्स्ट वीडियो आपका जो है सॉइल का रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेकअप करेंगे. सो स्टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ. बाय.